and welcome to Legacy IAS Academy. In today's video, we are going to discuss about an unfortunate incident that took place in Ahmedabad on Thursday evening. The news after that started rolling all over media channels and social media कि the Air India plane bound from Ahmedabad to London just after liftoff met with a crash. It went down on a medical college hostel in that area and close to 250 people. Almost everybody on board, including the crew members, excepting the lone survivor, and of course some of the medical professionals from the hostel, from the college also died in this unfortunate incident. So in this video, we are going to discuss about some important things that are under probe. There are so many speculations about the flap, about the landing gear, about the engine failure, about the error of the pilot. In this video, we will try to compile all these errors which are under predictions, which is being predicted कि ये सारी गलतियां हो सकती थी. तो उसमें से क्या-क्या चीजें हैं which is being expected now that we have got the black box and the investigations can now begin. We will be getting an exact idea in a week's or 2 weeks time. But what are the expectations? What are the predictions कि क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं? That is what we are going to discuss in this video. ठीक है? So let's begin with this video. Talking about the probe, the probable causes include the first one कि engine failure. ठीक है? अब airplane ऐसे जब वो take off कर जाती है, so they do have two engines both under the wings. अगर एक engine fail कर भी जाती है, तो in that case the other engine would have allowed the pilot to decide about this कि ठीक है there is an engine failure and they could have made an emergency landing at some other airport close to Ahmedabad. In any case, one engine failure also would not have resulted in a crash until and unless ये situation हो गया कि एक engine failure हो गया है and in emergency conditions by mistake the other engine was also shut down. तब in that case the crash can take place. ठीक है? So talking about the probe with respect to engine, the probable cause is simultaneous engine failure, although this is a very extreme condition. कि even if the one of the engines were functional, तो भी ये एक safe landing हो सकता था. ठीक है? Second probable cause is one engine failure followed by accidental shutdown of the second engine. That is what is being expected. अगर engine is the cause, if engine is the cause, तो अगर वो एक इंजन काम करना बंद कर दिया हो and accidentally the second engine which was functional was shut down, then only this kind of crash could have taken place. ठीक है? Now improbable cause, these are least expected cause, but there are also, क्योंकि we are looking after the probe कि क्या-क्या चीजें गलत हो सकती थी. So if we talk about what other mistakes could have taken place, the improbable causes could have been electrical or software issues, but because this Boeing Dreamliner was a very sophisticated machine, तो किसी भी तरीके का इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इश्यूज होता ना तो इट वुड हैव वार्नड द पायलट्स बिफोर टेक ऑफ इटसेल्फ. ठीक है? सो दिस इज आल्सो very improbable. Another problem could have been a fuel contamination. Now because they have two fuel chambers और जो कि just after take off वो fully loaded chambers थे and both are under the wings. तो फ्यूल कंटामिनेशन भी बहुत ही रेयर कंडीशन हो जाता है क्योंकि लेट्स से वन साइड ऑफ द विंग्स का फ्यूल वाज कंटामिनेटेड बट द अदर साइड ऑफ फ्यूल वाज स्टिल अवेलेबल फॉर द एरोप्लेन टू सेफली लैंड समवेयर एल्स. ठीक है? तो देन ऑल्सो दिस बिकम्स एन इम्प्रोबेबल कॉज. Now incorrect flap and slat deployment. Now that can be one of the issues with respect to flaps. We will be discussing little later. ये एक expected area है which is being expected by majority of the pilots worldwide कि flaps के retractment में कहीं गलती हुई होगी. ठीक है? So if we look at the CCTV footage तो बहुत ही कम chances हैं कि इसमें sabotage का भी कोई attempt नहीं दिखाई दे रहा है. So rest all other are improbable cause. एक probable cause is engine failure. That too simultaneously both the engines should have failed, जो कि बहुत rare condition है, और one engine would have failed and the other engine would have been accidentally shut down. ठीक है? That was all with respect to the engines. Now what is being expected most or being discussed most commonly is this कि उसके flaps ही retracted थे. Now looking at the videos, looking at the video footage, ऐसा बहुत सारे pilots world over they are saying, or even the Boeing's safety officer, he is also saying कि the flaps which were attached to the wings,
दिस वॉज अंडर इट्स मिनिमल कंडीशन, जो कि एक यूजुअल टेक ऑफ की जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। द फ्लैप्स वर रिट्रैक्टेड। सो व्हाट इज बेसिकली अ फ्लैप? जो एरोप्लेन्स होते हैं, नॉर्मल एरोप्लेन्स होते हैं, उसमें अदर दैन द बॉडी विंग, ठीक है, जो उसका फ्यूजलाज है, अदर दैन द मेन बॉडी, दे हैव अटैच्ड फ्लैप्स, ठीक है। और इस तरीके से फ्लैप्स को डाउन लिफ्ट या अपलिफ्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ फ्लैप्स का यूजेस क्या होता है? दैट इट इज बेसिकली इंक्रीजिंग द विंग साइज ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है। तो जब आपको लिफ्ट ऑफ करना हो या टच डाउन करना हो, लैंडिंग करना हो, तो वी ट्राई टू एक्सपैंड दिस विंग, और इसके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से हम लोग इधर लैंडिंग कर सकते हैं या टेक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। So flaps are basically attached to the wing, and that the primary intention is to increase the surface area, ठीक है। अब because this is attached through a hinge, यहाँ पे आप देख सकते हो एक hinge है जिससे ये flaps attached हैं, और जिस hinge की वजह से इस flap को ऊपर या नीचे किया जा सकता है, ठीक है। So जब हम लोग टेक ऑफ कर रहे होते हैं, when we are taking off, तो हम लोग इस flaps को ऊपर रखते हैं so that it generates an extra lift and the plane is able to take off easily. जितना ज्यादा आप इसे ऊपर रखोगे, उतना शॉर्टर लेंथ ऑफ द रनवे रिक्वायर्ड होगा टू टेक ऑफ, ठीक है। सिमिलरली व्हेन इट इज लैंडिंग, तो हम लोग फ्लैप्स को नीचे रखते हैं, एंड एज एंड व्हेन यू रिड्यूस, मतलब फ्लैप्स को जितने ज्यादा एंगल पर बेंड करोगे, ठीक है, उतना शॉर्टर लेंथ ऑफ द रनवे रिक्वायर्ड होगा फॉर लैंडिंग, ठीक है। तो फ्लैप्स का जो भी रिक्वायरमेंट है, दैट इज मोस्टली कि आपको कितना लंबा रनवे चाहिए होता है फॉर टेक ऑफ या लैंडिंग। तो अगर मान लेते हैं कि किसी कंडीशन में माउंटेन टॉप पर अगर रनवे है विच हुज लेंथ इज ऑब्वियसली वेरी शॉर्ट, तो इन दैट केस फ्लैप्स को बहुत ज्यादा नीचे या बहुत ज्यादा ऊपर करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल इट हेल्प्स अस टू डिसाइड द लेंथ ऑफ द रनवे। फ्लैप्स एक्चुअली क्या होते हैं ना, ये दिस इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट। जब आप एरोप्लेन को टेक ऑफ कर रहे होते हो, उससे पहले ही यू नीड टू चेक वेदर द फ्लैप्स आर फंक्शनिंग, हिंज इज वर्किंग और नॉट, ये फ्लैप्स ऊपर और नीचे जा रहे हैं या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो बोइंग 787 में ये ऑप्शन रहता है दैट बिफोर द टेक ऑफ इफ यू डिड नॉट फॉलो दिस चेकलिस्ट, तो देयर विल बी एन वार्निंग साइन विच विल स्टार्ट बीपिंग कि आपने ये चेकलिस्ट फॉलो नहीं किया। So this is also not a probability that the pilots would not have checked the flaps, ठीक है। अहमदाबाद क्रैश में, जैसे दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, कि एज वी डिस्कस्ड कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, और ये जो अहमदाबाद के क्रैश के जो वीडियो फुटेज सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो फ्लैप्स थे ना, दीज वर अंडर रिट्रैक्टेड कंडीशंस, ये अंदर ही थे विंग्स के, दीज वर नॉट इन एक्सपैंडेड कंडीशंस विच इज नॉट यूजुअल फॉर अ नॉर्मल टेक ऑफ और लैंडिंग, ठीक है। नाउ these are the video footages that are being circulated. इसमें एक और बात सामने आ रही है, दैट कि लैंडिंग गियर भी इतने देर समय तक नीचे था। यूजुअली वंस द टेक ऑफ गेट्स कंप्लीटेड, तो सबसे पहले क्या होता है, लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि लैंडिंग गियर इज जनरेटिंग अ ड्रैग जो कि उस प्लेन को इजीली लिफ्ट ऑफ नहीं करने देगा, ठीक है। तो इमीडिएटली जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ लैंडिंग गियर को ड्रैग अंदर कर लिया जाता है, ठीक है। बट इन दिस केस वी फाउंड दैट द लैंडिंग गियर वाज आल्सो प्रेजेंट। नाउ व्हाई ये सिचुएशन क्यों आया होगा, अब दिस इज आल्सो अंडर प्रेडिक्शन। As and when we open up the black box and the things start getting deciphered, तो चीजें ज्यादा खुल करके आएंगी, but again it is a predicted thing कि because the engines might have stopped working or the flaps, क्योंकि ये एक emergency का situation हो गया होगा, तो the pilots did not prioritize closing down the landing gear, ठीक है। landing gears present खुले में थे और इसे retract नहीं किया गया because the pilots thought that the plane is already under an emergency condition, so they were not prioritizing closing down of the landing gear, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीड, अब आखिरी गलती यहां हो सकती है कि अलग अलग पोजीशंस पे जो टेक ऑफ का स्पीड होता है, वहां पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ होगा, जो कि पायलट्स वर नॉट एबल टू गेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पीड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्रस्ट, और जिसकी वजह से क्रैशिंग हो गई होगी, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द स्पीड्स ऑफ एन एरोप्लेन, जब एरोप्लेन स्टार्ट होती है, व्हेन इट इज रनिंग ऑन द रनवे, ठीक है, तो वो रनवे पर चलती है और वो अपनी स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते एक स्पीड तक पहुंचती है, दिस इज नोन एज द V1, ठीक है। When it is on the runway itself, it is having a speed of something called V1, ठीक है। V1 is that maximum speed जिसके बाद अब एरोप्लेन को हवा में जाने की जरूरत है, ठीक है। So V1 is also known as the take off decision speed, क्योंकि यहाँ पे
पायलट को ये डिसाइड करने की जरूरत है कि वंस V1 हैज रीच्ड, तो अब हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि यहाँ टेक ऑफ नहीं करेंगे। V1 पहुंचने से पहले ही द पायलट मस्ट डिसाइड दैट दे वांट टू गो फॉर अ टेक ऑफ और नॉट, गो और नो गो फॉर अ टेक ऑफ, नो गो फॉर अ टेक ऑफ मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर V1, क्योंकि जब तक आप V1 अटेन कर लेते हो, यू आर ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द रनवे, सो नाउ यू डोंट हैव एनी टाइम टू डिसाइड कि अब हमको टेक ऑफ नहीं करना है। तो यहाँ एक गलती हो सकती होगी कि V1 जो अटेन किया गया हो और डिसीजन जो लिया गया हो, इसमें कोई आई वुड से कि मिसमैच वुड हैव बीन प्रेजेंट, ठीक है, कि V1 वाज नॉट अटेन्ड एंड द पायलट डिसाइडेड टू गो फॉर अ टेक ऑफ, ये इस तरीके की कोई गलती हुई होगी, ठीक है। बट किस कंडीशन में V1 कितना होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन वेदर कंडीशंस कैसे हैं, वेट ऑफ द एरोप्लेन कैसा है, विंड्स का स्पीड किस डायरेक्शन का है, विंड्स का स्पीड कैसा है और वो किस डायरेक्शन का है। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच गवर्न V1 इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। इवन फॉर द फिक्स्ड वेट ऑफ द एरोप्लेन, जैसे मान लेते हैं कि ड्रीम लाइनर्स का एक्सपेक्टेड वेट इज सच एंड सच, तो ऐसे कंडीशन में भी यू कैन नॉट डिसाइड कि V1 इतना ही होना चाहिए या इस रेंज का ही होना चाहिए, यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज V1 वेरीज अक्रॉस विंड स्पीड, अक्रॉस वेदर कंडीशंस, गर्मी कितनी है, कन्वेक्शन कितना है, ओवरऑल द वेट ऑफ द फ्लाइट कितना है, ठीक है। सो दैट वाज V1। V2 VR, इसके बाद आता है VR, दिस इज नोन एज द स्पीड ऑफ रोटेशन। What is the speed of rotation? कि जब एरोप्लेन रनवे पर से छोड़ने वाली हो, ड्यूरिंग टेक ऑफ, व्हेन इट इज लीविंग द रनवे, तो अब क्या होता है, ये पोजीशन जहां पे कि इसे नोज को टिप ऑफ करना होता है, एरोप्लेन के नोज को उठाना होता है, ठीक है। सो वी कॉल दिस एज नोज पिच अप स्पीड, कि वो नोज के डायरेक्शन को अपलिफ्ट करेगी और अब एरोप्लेन उड़ जाएगा, ठीक है। This because it is asking for an inclination, it is asking for the airplane to get inclined at certain angle, so we call this as the speed of rotation, ठीक है। अब इसमें again a very crucial juncture, अगर इस पॉइंट पर ऐसा कुछ हो कि टेल आपके ग्राउंड को टच कर दे, ठीक है, तो this is known as the total angle at which this inclination has taken place is known as the angle of attack. Angle of attack मतलब आपका जो rear end of the aeroplane है, वो ग्राउंड लेवल से किस एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है। ऑब्वियसली दैट शुड ऑल्सो बी अ सेफ डिस्टेंस, कि ऐसा ना हो कि आपका एरोप्लेन का टेल ग्राउंड को टच कर जाए। सो दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ अटैक, ठीक है, विच शुड ऑल्सो बी अ सेफ एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ अटैक विच शुड ऑल्सो बी अ सेफ एंगल, ग्राउंड लेवल से टेल का डिस्टेंस हाई होना चाहिए। एंड थर्ड एंड फाइनल थिंग इज द V2 इज दैट लास्ट स्पीड, कि अब वो हवा में आ चुकी है, अब इसे इतना थ्रस्ट जनरेट करने की जरूरत है कि वो एरोप्लेन लिफ्ट ऑफ कर सके। नाउ दिस वाज आल्सो अ पॉइंट वेरिंग जहाँ पे गलती हुई होगी पायलट की, अगेन एन एक्सपेक्टेड कंडीशन, कि V2 was not sufficiently gained और lift off sufficiently नहीं हो पाया, the amount of thrust generated by functioning of the engine was not sufficient कि वो एरोप्लेन को लिफ्ट ऑफ कर सके एंड द एरोप्लेन केम डाउन क्रैशिंग, ठीक है। सो ये सारे एरियाज हैं, दीज आर द डोमेन्स अंडर विच द मिस्टेक्स कुड हैव टेकन प्लेस। this is if we talk about V2, this is the after climb speed, or this can work even if one engine is inoperative. That is what we have discussed at initial phase also, कि अगर engines में एक engine काम करने बंद भी कर दिया होता, तो the second engine would still help the aircraft to survive, और एक emergency landing किसी भी और एयरपोर्ट पे किया जा सकता था, ठीक है। The speed V2 speed is known as the take off safety speed, क्योंकि आप एक बार टेक ऑफ कर चुके हो, एरोप्लेन हवा में आ चुकी है, अब आपको इतना ज़्यादा स्पीड जनरेट करने की ज़रूरत है कि ये ज़मीन पर वापस ना उतरे और इनका लिफ्ट कंटिन्यूड रहे, ठीक है। So these were the domains in which the mistakes could have taken place. Again, कहाँ से हमें करेक्ट डेटा मिलेगा इज ऑब्वियसली ब्लैक बॉक्स। जब ब्लैक बॉक्स को खोला जाएगा और इसमें से हमें कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स मिलने लगेंगे, ठीक है, तो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स निकल के आएंगे, कॉकपिट वॉइस डेटा रिकॉर्डर्स निकल करके आएंगे, तो देन वी विल गेट टू नो कि पायलट को किस समय सिचुएशन की इमरजेंसी का पता चला, ठीक है, एंड व्हाट एग्जैक्टली वाज द एरर that led to such an unfortunate incident of death of almost everybody flying in that plane. With that, we come to the end of this video. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.